بیٹا میرے خیال میں تمہیں نہیں جانا چاہیے وہاں، اب بھی وقت ہے، رک جاؤ، میں یہیں سے سب کچھ ٹھیک کروا دوں گا۔ تنزیل اور بابا اسے ایئرپورٹ چھوڑنے آئے تھے۔ نہیں بابا، شاید اس طرح وہ مجھے طلاق نہ دے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، وہ اپنا خیال رکھ سکتی ہے، میں جلدی واپس آؤں گی، اس نے تنزیل سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ تنزیل کو اسے چھونے کی بس اتنی ہی اجازت تھی اور تنزیل کو اس سے بڑھ کر اور کی خواہش بھی نہیں تھی۔ وہ اسے جاتا دیکھ رہا تھا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ارتضیٰ تیار ہو کر باہر آیا۔ ہاں بچے، اب میں ٹھیک ہوں، اور آج تمہاری میٹنگ ہے، تم مجھ سے لیٹ ہو، جلدی سے ناشتہ کرو، اور یہ کانٹریکٹ مجھے ہر حال میں چاہیے، تم جانتے ہو یہ کانٹریکٹ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ باپ بیٹے سے وہ فوراً بزنس مین بن چکے تھے۔ جی بابا میں جانتا ہوں، اور میں ناشتہ نہیں کروں گا کیونکہ اگر میں ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تو بہت لیٹ ہو جائے گا۔ ارتضیٰ نے مسکراتے ہوئے سیب اٹھایا۔ بالکل نہیں، آرام سے بیٹھو اور ناشتہ کرو، میں تمہیں ہرگز ایسے نہیں جانے دوں گی، دادو نے ڈانٹا۔ او ہو پیاری دادو، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی جاؤں گا اور ابھی واپس آ جاؤں گا، بس کانٹریکٹ سائن کرنا ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ ہماری کمپنی کو ہی ملے گا۔ ان کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ باہر نکل گیا۔ آج 4 سال بعد وہ واپس اس حویلی میں آئی۔ ترکی سے پاکستان کی فلائٹ میں وہ صرف ایک ہی بات سوچتی رہی، کیسے کرے گی وہ اس شخص کا سامنا؟ اسے تو بات کرنا بھی اسی نے سکھایا تھا، اس کا ہنسنا، بولنا، لڑنا، جھگڑنا، وہ سب صرف اپنی ذات تک محدود رکھتا تھا۔ اسے پسند ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے علاوہ کسی غیر مرد سے بات کرے۔ مرد تو مرد، اسے اس کی لڑکیوں سے بھی دوستی پسند نہ تھی۔ اس حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو آ گئے۔ اس حویلی میں تو اس نے چلنا، بولنا، دوڑنا، ہنسنا، رونا سب سیکھا تھا۔ یہ حویلی اس کی تھی، اس کی پہلی پہچان تھی وہ حویلی۔ آنسوؤں کا سمندر پیچھے دھکیل کر اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اگلے ہی لمحے دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس شخص کا سامنا کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائے گی، وہی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اپنے بابا کو کہہ کر آئی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر طلاق مانگنا چاہتی ہے اس سے، لیکن جہاز میں بیٹھتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے سامنے نہیں آئے گی، کیونکہ اس میں کتنی ہی ہمت، کتنا بھی کانفیڈنس سہی، لیکن آج بھی وہ اس شخص سے ڈرتی تھی۔ وہ صرف اپنے ماموں اور نانی سے مل کر لوٹ جانے والی تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا تھا، شاید اس کی طرح وہ بھی بے یقینی کی ہی کیفیت میں تھا۔ اس کے 4 سال کا انتظار اس کے سامنے تھا، جس کے لیے وہ ہر رات تڑپا تھا، ہر رات رویا تھا، کتنی دعاؤں میں سسک سسک کر اس نے اسے اپنے لیے مانگا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی ضد، اس کی محبت، اس کا جنون، اس کا سکون، سب کچھ ہی تو تھی وہ لڑکی جس کی جدائی میں 4 سال سے وہ تڑپ رہا تھا۔ ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اسے شانوں سے تھاما اور اپنے آپ سے لگا لیا۔ وہ بے یقینی سے پہلے کھڑا دروازے پر کھڑے وجود کو دیکھتا رہا۔ وہ کوئی غیر نہیں تھی، اس کی اپنی شانی تھی، یہ اس کی روشانی، اس کی زندگی کی روشنی۔ وہی ارتضیٰ حیدر کے لیے جان سے بھی بڑھ کر تھی۔ اس کی ضد تھی کہ اسے ہمیشہ کے لیے ارتضیٰ کے نام لکھ دیا جائے۔ وہ 4 سال کی تھی جب اس کے ہاتھ میں ارتضیٰ کے نام کی انگوٹھی پہنا دی گئی، اور 15 سال کی جب ارتضیٰ کے نکاح میں آئی تھی۔ وہ جوانی کی دہلیز پر پہلا قدم رکھتے ہی وہ ارتضیٰ سے محبت کر بیٹھی، صرف اسے چاہنے والی، صرف اسے سوچنے والی۔ اس کی زندگی سے بہت دور چلی گئی تھی، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر، اور آج 4 سال بعد ایک بار پھر سے اس کی باہوں میں تھی۔ اپنے بچپن سے لے کر اب تک کی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب ارتضیٰ نے اسے سامنے کر کے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ دادو دیکھیں میری شانی واپس آ گئی، بابا دیکھیں نا، آپ لوگ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اس نے دادو اور بابا کی طرف دیکھا جو ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ کھڑے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آج ارتضیٰ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ دادو نے دل ہی دل میں ارتضیٰ کی نظر اتاری اور مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنی شانی کو اپنے سینے سے لگایا۔ آ گئی میری بچی، تیری نانو نے تجھے بہت مس کیا۔ ان لوگوں کے بیچ آ کر وہ 4 سال پہلے کی ہر بات فراموش کر چکی تھی۔ ماموں اس کے قریب آئے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ 4 سال پہلے جو کچھ ہوا وہ جیسے سب بھول گئی تھی۔ اسے اپنے ماموں اور نانوں کو دیکھ کر ایک بار پھر سے ایسے لگا تھا کہ وہ جی اٹھی ہے، جبکہ ارتضیٰ ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا۔ جب اچانک اس کا فون بجا، اس نے جلدی سے فون نکالا جہاں تنزیل کالنگ لکھا تھا۔ شانی نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ ارتضیٰ کے ہاتھ سے نکالا اور فون لے کر باہر لان کی طرف چلی آئی۔ تنزیل تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہاں سب کچھ ٹھیک ہے، میں جس مقصد کے لیے یہاں آئی ہوں وہ پورا کر کے ہی واپس آؤں گی۔
देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उस इर्तिज़ा से दूर रहना। पहले जो भी था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम मेरी मंगेतर हो, ये बात याद रखना। वो तंज़ील से बात कर रही थी जबकि उसकी नज़र शीशे के उस पार खड़े इर्तिज़ा पर थी, जो उसे देखता यहाँ से वहाँ चक्कर काट कर उसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसकी कॉल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा, ये किससे बात कर रही है इतनी देर से? आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? अभी इसकी कॉल बंद करवाता हूँ। बाबा और दादो उसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो किसी से भी बात कर रही है, उसकी कॉल ख़त्म करने का इंतज़ार करे वो। हो सकता है वो अपनी किसी सहेली या बाप से बात कर रही हो, और अगर तुम इस तरह करोगे तो ये ना हो कि वो तुमसे नाराज़ होकर वापस चली जाए। और मीटिंग पर नहीं जा रहे तुम? मैंने तुम्हें बताया है इर्तिज़ा, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं चला जाता हूँ। बाबा ने उसे ऑफ़र दी। अरे नहीं नहीं बाबा, मैं तो उसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। फिर अपनी शानी से बहुत सारी बातें करूँगा और 1 हफ़्ते तक ऑफ़िस का मुँह नहीं देखूँगा। उसने बात करते करते अपना इरादा बताया, जिस पर बाबा मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, अब हम भी इंतज़ार नहीं करेंगे। अब तो शानी को रुखसत करके हमेशा के लिए तुम्हारे पास ले आएँगे। अब अपने बच्चे को मैं मज़ीद उदास नहीं देख सकती। दादो ने अपनी आँखों में आई नमी को छुपाया। वो ना चाहते हुए भी मीटिंग के लिए चला गया था। जैसे ही शानी को लगा कि इर्तिज़ा जा चुका है, उसने जल्दी से कॉल ख़त्म की और नानो और मामू के पास आकर बैठ गई, क्योंकि तलाक की बात इर्तिज़ा से करना उसके बस में भी नहीं था। उसके बाजुओं की गिरफ्त वो अब तक अपने शानों पर महसूस कर रही थी। कितनी शिद्दत से उसने उसे खुद में भींचा था। फ़ोन बंद करने के बाद वो नानो के पास आकर बैठी। नानो कभी नवासी को मोहब्बत से देखती तो कभी उसका माथा चूमती और फिर कोई पुरानी बात छेड़ देती। तकरीबन 2 घंटे तक वो उनके पास बैठी रही। उसने बचपन से ही अपनी नानो के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन अब वक्त ऐसा गया था कि वो 4 साल से अपनी नानो और मामू से दूर थी। नानो मामी कहाँ है? बहुत देर नज़र दौड़ाने के बाद भी उसे कहीं रुखसाना बेगम नज़र ना आई तो उसने पूछा, तेरे जाने के कुछ दिन बाद ही उसे और उसकी भतीजी को तेरे मामू ने घर से निकाल दिया। खैर तू छोड़ इन बातों को, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर इर्तिज़ा आ जाएगा तो तुझे आराम करने का भी मौका नहीं देगा। दादो ने मुस्कुराते हुए इर्तिज़ा की बेताबियां बताईं तो रोशनी चाहकर भी यहाँ आने की अपनी हकीकत ना बता पाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं छुपाना था। उसे ये बात बतानी थी कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आई है। जी दादो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मगर ये तो बता कि रात को क्या खाएगी तू? मैं अपनी लाडली के लिए अपने हाथ से बनाऊंगी उसकी पसंद की चीज़। उसे अपने साथ लगाते हुए वो बोली, आपके हाथ में जादू है नानो, आप जो भी बनाएंगी आपकी शानी खाएगी। उनके गाल चूम कर वो अपने कमरे में आ गई। ये कमरा जिसमें उसकी कई सालों की बातें यादें जुड़ी थी, वो बचपन से जहाँ रह रही थी। इर्तज़ा का 4 बार फ़ोन आ चुका था। उसने मेरे बारे में बात की, उसने मेरे बारे में पूछा, उसने मुझे मिस किया। मुझसे नाराज़ होगी ना, बहुत उसका मुझसे बहुत नाराज़ होगी ना, हक बनता है उसका, मना लूँगा मैं उसे। देखिएगा ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहने दूँगा मैं उसे। अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं डांटूँगा उसे। एक बार उसे खोकर मैं उसकी अहमियत जान चुका हूँ। अब दोबारा अपने किसी भी रवैये से मैं उसे खोना नहीं चाहता। इर्तिज़ा के लहजे से ही खुशी झलक रही थी, जैसे आज उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। और ऐसा ही तो हुआ था। आज 4 साल बाद वो वापस आई थी। उसकी मोहब्बत उसके सामने खड़ी थी। इर्तिज़ा अभी तक उस लम्हे में कैद था जब उसने 4 साल बाद शानी को अपनी बाहों में लिया था। कितना हसीन एहसास था वो वापस अपनी शानी के पास पहुंच जाना चाहता था, लेकिन हाय ये मीटिंग, वो इस मीटिंग के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था जो अभी शुरू ही नहीं हुई थी। इर्तिज़ा जितना जल्दी हो सके ऑफिस से वापस आया था। उसका मकसद शानी के साथ वक्त गुजारना था। वो चाहता था कि वो सारा वक्त अपनी शानी के साथ गुजारे, लेकिन वो घर वापस आया तो शानी कहीं भी नहीं थी। फिर इर्तिज़ा परेशान हुआ था कि कहीं वो उसे छोड़कर वापस तो नहीं चली गई। बहुत सारी सोचों के साथ वो किचन में गया। दादो शानी कहाँ है? मैं हर जगह उसे ढूंढ चुका हूँ। कहाँ गई है वो? वापस तो नहीं चली गई? उसके लहजे में परेशानी दादो साफ महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में है इर्तिज़ा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने उसे आराम करने को भेजा है, यहीं है वो, कहीं नहीं गई। दादो ने उसकी परेशानी देखकर जल्दी से बताया। अच्छा, अपने कमरे में है? इर्तिज़ा पुरसकून हुआ। अच्छा मैं उसके पास जा रहा हूँ। वो पुरसकून सा मुस्कुराकर उसके कमरे की तरफ जाने लगा। अरे बेटा रुक जाओ,
आराम कर रही है वो, बेचारी सफ़र से आई है, थकी हुई है, दादी ने समझाते हुए कहा। अच्छा दादो, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अगर वो सो रही होगी तो मैं सिर्फ उसके पास बैठकर उसको देखूँगा। आप फिक्र ना करें, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। इर्तज़ा को समझाना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए दादो भी चुप करके खाना बनाने लगी, जबकि वो सीधा शानी के कमरे में चला आया। वो हमेशा से उसके कमरे में आता जाता था। उसके कमरे में आने जाने के लिए उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई और शानी से मिलना चाहे तो उसके लिए पहले इर्तज़ा की इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी था। इर्तज़ा उसके कमरे में आया तो वो वहाँ नहीं थी। वॉशरूम में पानी गिरने की आवाज़ सुनकर वो पुरसकून सा हुआ और उसके बेड पर लेट गया और वहीं उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बालों में टॉवल लिए बेध्यानी से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। उसने ये देखने की ज़हमत भी नहीं की कि कमरे में कोई मौजूद है। वो काफ़ी देर उसे इस तरह बाल सुखाते देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठकर उसके करीब आ खड़ा हुआ। अचानक उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ तो वो चौंकी। रिलैक्स शानी, ये मैं हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। चेहरे पर मगरूर मुस्कुराहट लिए वो उसके सामने खड़ा था। वो आज भी वैसा ही था। उसकी ज़ात का गरूर, उसकी शख्सियत आज भी वैसी ही थी। बदल तो वो गई थी, रुसवा तो वो हुई थी, अपना घर छोड़कर तो उसे जाना पड़ा था। वो शख्स तो आज भी वैसा ही था। उसकी शख्सियत में ज़रा बराबर तब्दीली नहीं आई थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर शानी को गुस्सा आने लगा और ज़्यादा गुस्सा उसे उसकी सुबह वाली हरकत पर आया था। इर्तज़ा, जाना है मुझे यहाँ से। शानी ने उसे नज़रअंदाज करने के लिए एक नाकाम कोशिश की। नहीं छोड़ूंगा, 4 साल बाद देख रहा हूँ तुम्हें, जी भर कर देखने तो दो। लफ्ज़ इल्तजाई थे, लेकिन लहजा हक जता रहा था। मैंने कहा रास्ता छोड़ें, नानो बाहर इंतज़ार कर रही हैं। और मैं जो 4 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा, उसका क्या? इर्तज़ा ने कहते ही उसका हाथ थाम लिया। इर्तज़ा प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया था और बिना उसकी तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गई। इर्तज़ा बेयकीनी से उसे जाता देखता रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसकी शानी ने उसका हाथ झटका हो, लेकिन वो जानता था वो नाराज़ है उससे। उसने कोई छोटी गलती तो नहीं की थी। उसने अपनी शानी की जगह किसी और को दे दी थी। उसने अपनी मोहब्बत की तौहीन की थी। सज़ा का हकदार तो था वो। तो फिर उससे अच्छे की उम्मीद क्यों लगाए हुए था? वो हक पर थी। उसका हक था नाराज़ होना और उसे मनाना उसका फ़र्ज़, और इर्तज़ा को अब अपना फ़र्ज़ निभाना था। खाने की टेबल पर भी इर्तज़ा उससे बात करने की कोशिश करता रहा, जबकि वो नानों और मामू के हर सवाल का जवाब देती, लेकिन उससे कोई बात नहीं कर रही थी। पहले अपने आप को इस तरह इग्नोर किए जाने पर इर्तज़ा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि आज वो उसे इग्नोर कर रही थी तो उसकी वजह भी तो वो खुद ही था। खाना खाते हुए इर्तज़ा का ध्यान उसके हाथ पर गया, जहाँ उसने कभी उसे ब्रेसलेट पहनाया था, लेकिन आज वो वहाँ पर नहीं था। इर्तज़ा ने जब से उसे इर्तज़ा ने जब से उसे वो वाला ब्रेसलेट पहनाया था, उसने उतारने की गलती नहीं की थी, क्योंकि एक बार हाथ धोने के बाद उसे वो वॉशरूम में छोड़ आई थी, जिसके बाद इर्तज़ा ने उसे इतना डांटा कि फिर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि उसे अपने आप से अलग करती। लेकिन शायद अब उसे ना इर्तज़ा का डर था और ना ही उसकी मोहब्बत की किसी निशानी की ज़रूरत। खाना खाने के बाद वो एक बार फिर अपने कमरे में चली गई थी। इर्तज़ा उसके कमरे में आया तो वो फ़ोन पर मसरूफ़ थी। क्या तुम फ़ोन पर बात बाद में नहीं कर सकती? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सॉरी, मैं ज़रूरी बात कर रही हूँ, आप बाद में आ जाइएगा। शानी ने जवाब दिया और एक बार फिर से फ़ोन पर मसरूफ़ हो गई। मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, वो कहकर वहीं उसके बेड पर बैठ गया, जबकि शानी उठकर बालकनी में आई और फिर बालकनी के शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो उसे देख तो सकता था, लेकिन सुन नहीं पा रहा था। वो काफ़ी देर उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन उसकी कॉल थी जो ख़त्म होने में नहीं आ रही थी, या उसे देखकर उसने वो कॉल लंबी कर ली थी। उसे बहुत ज़रूरी मीटिंग पर जाना था, इसलिए वो शानी से बात करना चाहता था, लेकिन शानी थी कि उसे मुँह नहीं लगा रही थी, तो वो मजबूर होकर उठकर चला गया। और उसके जाते ही शानी, जो कब से फ़ोन कान से लगाए इधर-उधर घूम रही थी, फ़ोन बंद करके अपने कमरे में वापस आ गई। वो जानती थी कि वो उसे आसानी से नहीं भेज सकेगी। अपने कमरे में जाने की बजाय वो दादो के कमरे में आया। अरे मेरा बच्चा अभी तक जाग रहा है। इस वक्त तक वो अपनी आधी नींद पूरी कर चुका होता था। दादो ने उसे अपने पास बुलाया। इर्तज़ा उनके पास जाकर उनकी गोद में सर रख कर लेट गया।
दादो, वो मुझसे बात नहीं करती। मैं उसके कमरे में गया था, उससे बात करने गया था, लेकिन वो न जाने किससे फ़ोन पर इतनी लंबी लंबी बातें कर रही थी और मुझे देखना तक गवारा नहीं किया उसने। इर्तज़ा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, नाराज़ है ना तुझसे, इसलिए ऐसा कर रही है। तू मनाएगा उसे तो सब ठीक हो जाएगा। दादो ने उसे समझाते हुए कहा। दादो, मैं कल उसका फ़ोन ही तोड़ दूंगा। इर्तज़ा ने मसले का हल निकाला, जिस पर दादो मुस्कुरा दी। फिक्र मत कर, कल मैं पूछूंगी उससे कि किससे बातें करती रहती है, ऐसे ही मेरे बेटे का दिल जलाती है। दादो ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सुबह होते ही दादो उसके कमरे में आई थी। अरे बेटा, तुम तो जाग रही हो, मुझे लगा कि अभी तक सो रही होगी। नानो, वहां जाकर मैं आपकी तरबियत नहीं भूली। अब भी सुबह सवेरे उठती हूँ ताकि सारे फरिश्तों को गुड मॉर्निंग कह सकूं। उसने मुस्कुराते हुए नानो के गाल को चूमा। बचपन में जब दादो उसे नमाज की आदत लगा रही थी तो वो कहती थी कि सुबह सुबह जागो ताकि फरिश्तों को गुड मॉर्निंग कह सको। वो फरिश्ते सारा दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे। अच्छा बताओ ना, नाश्ते में क्या खाओगी? दादो ने प्यार से पूछा था। मेरी प्यारी नानो के हाथ के आलू के पराठे। और क्या? शानी ने चटखारे लेते हुए कहा। अरे वाह, क्या याद दिलाया तुमने, अभी बनाती हूँ। इर्तज़ा को भी बहुत पसंद है। तुम्हारे जाने के बाद तो उसने कोई ही फरमाइश करना ही छोड़ दी। चलो आज तुम्हारे साथ वो भी खा लेगा। मुझे तुमसे ज़रा बात करनी थी, बुरा मत मनाना। ये तुम जिससे फ़ोन पर बातें करती हो वो कौन है? वो कभी भी किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन रात वो कभी भी किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं करती थी, लेकिन रात को इर्तज़ा की बेचैनी देखकर वो पूछे बिना नहीं रह सकी। इर्तज़ा उसे कभी भी किसी से इतना फ्रैंक होने ही नहीं देता था। वो उसे दोस्त बनाने से मना कर चुका था और वो उसका वक्त किसी और को ना दे। अब वो इर्तज़ा के सामने किसी से इतनी लंबी गुफ्तगू करती तो उसे बुरा लगता था शदीद। नानो, मैं यहाँ आपके पोते से तलाक लेने आई हूँ। मेरा मंगेतर है नानो। छुपाने का कोई फायदा ना था, इसलिए उसने नानो को हकीकत बताई। नानो, मैं यहाँ आपके पोते से तलाक लेने आई हूँ ताकि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकूं, जिस तरह वो बढ़ गया था 4 साल पहले। शानी ने उन्हें झटका दिया था। नहीं शानी बेटा, वो नहीं बढ़ा आगे, वहीं खड़ा है जहाँ तुम उसे छोड़ कर गई थी। और कोई ज़रूरत नहीं है तलाक लेने की, बहुत ही नापाक लफ्ज़ है। खबरदार जो आइंदा तुमने ये लफ्ज़ भी ज़बान पर लिया तो। और इर्तज़ा को बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई तुम्हारा मंगेतर था। मैं तुम्हारे बाप से रुखसती की बात करती हूँ। और इर्तज़ा को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई तुम्हारा मंगेतर है। और रही तुम्हारे बाप की बात, तो मैं आज ही बात करती हूँ रुखसती की उससे। दादो फैसला सुनाकर बाहर जाने लगी। उनके चेहरे पर घबराहट वाज़ेह थी। वो अपने पोते को एक बार फिर से अंधेरे की नज़र नहीं कर सकती थी। अभी कल ही से तो उसने जीना शुरू किया था। उसने दादो को रोका नहीं, रोकने का कोई फ़ायदा भी नहीं था, और ना ही कमरे से निकली। फिर तकरीबन दिन के वक्त उसने एक फ़ैसला किया। उसे यकीन था कि इर्तज़ा अब तक जा चुका होगा। उसने अपने बैग से तलाक के कागजात निकाले और मामू के कमरे की तरफ चली आई। मामू, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। शानी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहा। बेटा आओ ना, क्या बात करनी है? उन्होंने उसे अपने पास बिठाया। एहसन साहब को कभी भी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अपनी बहन के इंतकाल के बाद उनकी आखिरी निशानी शानी हमेशा उनके पास रही थी। शानी की परवरिश उन्होंने खुद की थी। इर्तज़ा उससे 10 साल बड़ा था उम्र में। वो सिर्फ 4 साल की थी जब उसके बाप से उसे अपने बेटे के लिए हमेशा के लिए मांग लिया था उन्होंने। उस वक्त उस रिश्ते पर किसी ने इतराज़ नहीं किया। इर्तज़ा को लंदन हाई स्टडीज़ के लिए भेजा जा रहा था। जब उसने ये शर्त रख दी कि जब तक उसका निकाह शानी से नहीं पढ़ा दिया जाता वो तब तक लंदन नहीं जाएगा, और इस तरह से शानी हमेशा हमेशा के लिए इर्तज़ा के नाम लिख दी गई। शानी ने अपने हाथ में पकड़े पेपर्स अपने मामू के सामने रखे। तलाक के कागजात देखकर एहसन साहब भी परेशान हुए। मामू, मैं अपनी ज़िंदगी खुलकर जीना चाहती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे यकीन है आप इस फैसले में अपनी बेटी का साथ ज़रूर देंगे। बस इतना कहकर उसने पेपर्स उनके सामने रखे और बाहर चले गई। अब आगे का फैसला उन्होंने करना था। आज भी इर्तज़ा जल्दी घर वापस आया था। घर आकर देखा दादो शानी को कोई बात समझा रही थी। दादो की आंखों में आंसू देखकर उसे कुछ अजीब सा लगा, जबकि बाबा खामोशी से उसके साथ बैठे थे। उसने उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। उसका इरादा पहले फ्रेश होने का था, इसलिए वो पहले अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वो चाहता था कि शानी और दादो जो भी बात कर रही हैं सुकून से कर लें। इर्तज़ा बेटा यहाँ आओ, आकर इन पेपर्स पर साइन कर दो। बाबा की आवाज़ पर वो पलटा। जी बाबा। क्यों?
बताएं कहाँ साइन करने हैं। उसने अपनी जेब से पेंसिल निकालते हुए कहा। उसे लगा कि कोई ऑफिस की फाइल है जिस पर साइन करने हैं उसने। यहाँ इन कागजात पर। बाबा ने कागज उसके सामने रखे। वो उन पेपर्स को देखने लगा। अपने सामने तलाक के कागजात देखकर उसे इस तरह लगा जैसे उसे किसी अंधेरे में धकेल दिया हो किसी ने। उसने बेयकीनी से शानी की तरफ देखा, लेकिन वो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। गुस्से से उसके माथे की रगें उभर आई थीं। अभी कल ही तो उसकी खुशियां उसकी जिंदगी में वापस आई थीं, और ये बेरहम लड़की उससे उसकी खुशियां छीन रही थी। वो बेयकीन सा उसे देखते हुए सोफे पर बैठ गया। उसने बारी बारी अपने सामने बैठे अपनों को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके जान से प्यारे बाबा उसके सामने बैठकर उसी की जान निकाल रहे थे। क्या वो उसके 4 साल के हालात से बेखबर थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। वो सब जानते थे। वो जानते थे कि उसने शानी का कितना इंतज़ार किया है, कितना तड़पा है वो उसके लिए। लेकिन इसके बावजूद भी वो उसकी बजाय शानी का साथ दे रहे थे। क्यों? बाबा ने उसके सुर्ख चेहरे से उसके गुस्से का अंदाज़ा लगाया, लेकिन फिर भी वो शानी का साथ दे रहे थे। बेटा जल्दी से साइन करो इन कागजात पर, बाबा ने फिर से कहा। उसने गुस्सीली निगाहों से अपने बाप को देखा जो जो अपने हाथों से ही अपने बेटे की जान निकाल रहे थे। जिद्दी, बदतमीज, अक्खड़ मिजाज, वो तो बचपन से ही था। वो बाबा की बात सिर्फ तब मानता जब उसे अपना कोई मतलब दिखता था उसमें। बाबा की दूसरी शादी करते ही वो बाबा की दूसरी शादी होते ही वो उनसे दूर हो गया था। लेकिन शानी के जाने के बाद वो एक बार फिर अपने बाबा के क्लोज हो गया था, बहुत क्लोज। उसने सबकी तरफ देखा, फिर पुरसकून सा होकर सोफे के साथ टेक लगाकर टेबल पर टांगे रखकर बैठ गया। ये उसका पुराना अंदाज था जो शानी के जाने के बाद उसने अपनाया ही नहीं था। बाबा ने हैरानगी से उसकी 4 साल पहले वाली हरकत को देखा। एक लम्हे के लिए उन्हें उससे खौफ महसूस हुआ। फिर उसने बाबा और दादो को इग्नोर करके सीधा शानी की तरफ देखा और गहरा सांस खारिज किया। तो तुम यहाँ मुझसे तलाक लेने आई हो? उसके इस तरह देखने पर एक बार तो रोशाने का दिल तेजी से धड़का था, लेकिन ये वक्त डरने का नहीं था, मुकाबला करने का था। उसे अपनी खुशियों के लिए खुद ही आगे बढ़कर उस इंसान का मुकाबला करना था। तो फिर वो चुप क्यों रहती? जी हाँ, मुख्तसर सा जवाब आया। गुस्सा जब्त करने की वजह से उसका चेहरा मजीद सुर्ख हो रहा था। क्यों? फिर सवाल आया। देखो इर्तज़ा, मेरी बात सुनो। बाबा ने कुछ कहना चाहा। देखें बाबा, आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। प्लीज़, ये हम दोनों का पर्सनल मैटर है, आप बीच में मत बोलें। उसके लहजे में बदतमीज़ी साफ वाज़ेह थी। इन 4 सालों में बाबा को कहाँ उसके इस लहजे की आदत रही थी। उसे इस तरह बदतमीज़ी करते देख वो चुप हो गए थे। हाँ, तो तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, क्या चाहती हो तुम? क्यों चाहती हो तलाक मुझसे? गुस्से से पूछा गया। क्योंकि मैं इस रिश्ते को नहीं निभाना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारना चाहती हूँ। मैं शादी करना चाहती हूँ। इस बार शानी ने नज़रें चुरा कर कहा था। उसे लग रहा था कि ये बात इर्तज़ा के सामने कहना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं था। कौन है वो जिससे तुम शादी करना चाहती हो? लहजे में इतनी नफरत थी कि कोई गैर भी नोट कर लेता। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस मुझे इस नामी गरामी रिश्ते से आज़ाद करें ताकि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार पाऊँ। शानी ने दू बदू जवाब दिया। मुझे मतलब है। इर्तज़ा धाड़ते हुए सोफे से उठा और पूरी शिद्दत से हाथ में पकड़ा अपना मोबाइल ज़मीन पर पटक दिया। मुझे मतलब है मिसेज़ इर्तज़ा हैदर, मुझे उसका कत्ल करना है। जान से मार डालूंगा उस इंसान को जो मेरे अलावा तुम्हें चाहेगा। आंखें नोच लूंगा मैं उसकी जो तुम्हें देखेगा। बताओ कौन है वो? बताओ मुझे। मैं भी तो देखूं कि कौन है जो इर्तज़ा हैदर की चीज़ पर अपनी नज़र रख रहा है। इर्तज़ा गुस्से से धाड़ते हुए बोला। मिस्टर इर्तज़ा हैदर, मैं कोई चीज़ नहीं, इंसान हूँ, और मुझे मेरी ज़िंदगी मेरी मर्ज़ी से गुजारने का पूरा हक है। वो उसी के अंदाज में चिल्लाते हुए बोली थी। उसकी बात सुनकर वो ज़रा सा मुस्कुराया। हाँ, इंसान हो इंसान, लेकिन हो तो मेरी ना। हाँ, तुम्हें ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है, लेकिन वो हक अगर मैं तुम्हें दूँ तो। और अब से तुम्हें मेरे सब हकूक़ मिलेंगे। बाबा, रुखसती की तैयारी कीजिए। मैं अब रुखसती चाहता हूँ। वैसे भी बहुत वक्त गुजर चुका है। मैंने इसे ज़रूरत से ज़्यादा ही ढील दे दी। अब से ये अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। इर्तज़ा कहते हुए बाहर जाने लगा। मैं किसी कीमत पर इनसे शादी नहीं करूंगी। मामू, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं सिर्फ एक हफ्ते के लिए आई हूँ यहाँ।
चली जाऊंगी मैं यहाँ से वापस। इनसे कहें कि मेरी ज़िंदगी को आज़ादी बख्श दें, मैं मज़ीद मुश्किलात का सामना नहीं कर सकती। मामू आप चुप क्यों खड़े हैं? नानो आप भी तो कुछ बोलें, क्या हो रहा है ये सब? रोशानी ने दोनों को मुखातिब करते हुए कहा। शानी बेटा तुम उसकी ज़िद जानती हो, दादो ने उसे समझाना चाहा। क्या मतलब है नानो, उनकी ज़िद? क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या मेरे कोई ख्वाब नहीं है? या मुझे जीने का कोई हक नहीं? मुझे किसी कीमत पर इनसे शादी नहीं करनी, बता दीजिएगा इन्हें। तलाक तो मैं हर कीमत पर लेकर रहूंगी और अब मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। वो गुस्से से कहती अपने कमरे में बंद हो गई थी।